Hello everyone, my name is Bhavna Gupta, and as you know that we have started an initiative under which we start studying ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो हम लोगों ने वो पार्ट कवर किया था, कुछ बेसिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन. As the name indicated, we have halo. What is the meaning of halo? Halo means we have halogens. Halogens we represented with the X, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine. When it is present with the alkane, then it is known as haloalkane. Okay? Haloalkanes. We have R and X. So, if we have methane, and we remove one hydrogen from it, it will be CH3H3, and we'll place any halogen over here, then it will become haloalkanes. Okay? In the same way, if we have halogen present over the benzene ring, if the halogen present over the benzene ring, then it is known as haloarine, and it is represented with Ar, and the halogen is X. Ar is benzene ring. For example, okay, we'll remove one hydrogen from here and we'll place X at the place. Okay, so this is the introduction about the haloalkanes and the haloarenes. So what is haloalkane? When the halo group, means halogen group, is present with the alkane, then it is known as haloalkane. And in the same way, if we have halogen is present with the arene group, that is the benzene ring or any aromatic ring, then it is known as haloarene. Okay, is it fine? Then we will classify it on the basis of number. It can be primary, it can be secondary, it can be tertiary. Is it fine? Classify it on the basis of number. If we have one halogen present like this, then it is monohalide. When two halogen group present, then it is known as dihalide. For example, so these are two halogen group present, so it is known as dihalide. Okay, when one halogen group is present, then it is known as monohalide. When two halogen groups are present, then it is known as dihalide. When the three halogen group is present, for example, then it is known as trihalide. Okay, X can be fluorine, chlorine, bromine, iodine. It can be fluorine, chlorine, bromine or iodine. It can also present on the benzene ring. So this is monohalide. If two halogen groups are present, then it is known as dihalide. When three halogen groups are present, then it is known as trihalide. Okay, we have done in the previous lecture, this position as comparative to this is known as ortho, this position as comparative to this position is known as meta, and this position as comparative to this position is known as para. This we have done in previous lecture. Please go and visit that lecture. Is it fine? This is classified on the basis of numbers. Okay, two terms we have, gem halides and the vicinal halides. Okay, what is gem halides? When the two halogen are present on the same carbon. Okay, when two halogen are present on the same carbon, then it is known as gem halide. When two halogen present on the different carbon, or you can say that it is present on the adjacent carbon, then it is known as vicinal halide. Let us take an example. First we will see the example of gem halide. So what is gem halide? Gem halide is when the two halogen present on the same carbon. When the two halogen present on the same carbon, then this is known as gem halide. Okay, when the two halogen present on the same carbon, then we have gem halide.
And what is vicinal halide? Vicinal means साथ साथ वाली position. When the two halogen present on the adjacent positions. एक halogen इस ग्रुप पे ऊपर हो गया, देखो इस कार्बन के ऊपर एक हैलोजन और साथ वाले कार्बन के ऊपर एक हैलोजन, बाकी आप उसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए। देखो कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होगी 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 एंड 4। ओके, तो इसके साथ हम एक CH3 लगा देते हैं। क्लियर? सो दिस इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल मींस एडजेसेंट पोजीशन एंड द जेम मींस ऑन द सेम कार्बन। ओके, नेक्स्ट हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, वी हैव मोनो, डाई एंड द ट्राई, and then we have gem and the vicinal one. Now we will classify on the basis of hybridization. Okay, now classify on the basis of hybridization. So अगर हम इसको hybridization की basis पे classify करते हैं तो हम दो में classify करेंगे। One can be sp3, जो कार्बन sp3 होगा, और एक कार्बन होगा जो sp2 होगा। तो हमें पहले ये समझना होगा कि sp3 और sp2 कार्बन कौन से होते हैं। अगर ये देखो इस कार्बन के सराउंडिंग हमारे पास एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ओके, सो दिस इज नोन एज sp3 hybridized. When we have any double bond present surrounding to the carbon, then it is known as sp2 hybridized. So carbon is tetracovalent, so this is sp2, the one double bond present. If we have triple bond present with the carbon, then it is known as sp hybridized. Is it fine? So now we will classify on the basis of hybridization. Is it fine? So it is classified on the basis of hybridization three types. We can classify it on the basis of hybridization. It is of three types. Alkylic. Second one is the allylic. And third one is the benzylic. Okay. So on the basis of hybridization, we'll classify it on three types. One is the alkylic, allylic and the benzylic. जो पहले हमने क्लासिफाई किया था वो हमने अकॉर्डिंग टू नंबर किया था, अब हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलो हम पहले ले लेते हैं alkylic. Okay, so this is carbon and with this carbon we have halogen. If we have one R group present, then this is known as primary. When we have two R group present, R can be methane, ethane, propane, it can be anything, though this is secondary. And if we have three R group present, then it is known as tertiary. So this is alkylic. Alkylic is classified because we have all side we have single bond present. So this is sp3 hybridized. Is it fine? So what is primary? If we have one R group present, in secondary we have two R group present, and in tertiary we have three R group present. Is it clear to you? Next we have so what is this known as? This is halocyclopentane. So this is also sp3 hybridized, no double bond present. So what is this known as? If we present it like this, this is butane, 1 2 3 4. So this is halocyclobutane. And the same way, if we have three carbon compound present, then it is known as halocyclopropane. Okay, so this is alkylic, primary, secondary or the tertiary. Is it clear? Next we have allylic. Allylic. ओके, सो दिस इज हेलोजन. हेलोजन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ वाले कार्बन के ऊपर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके, सो दिस पोजीशन इज नोन एज एलाइलिक.
कार्बन के हेलोजन के साथ वाले कार्बन के ऊपर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बिकॉज जो हेलोजन के साथ वाला कार्बन है उसके सराउंडिंग में हम लोगों ने देखना है कि सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, तो इसमें कार्बन में कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3, 3 पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो एक हाइड्रोजन आ गया। ओके, इसके सराउंडिंग 2 हाइड्रोजन और 2 पोजीशन ये होगी। ओके, सो एलाइलिक मींस अगर हमारे पास एलाइलिक आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज, इज इट फाइन? सो अगर हेलोजन के साथ वाले कार्बन के ऊपर आपने देखना है सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाइए, अगर उसके साथ वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस पोजीशन को कहते हैं एलाइलिक। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, सो हम नंबर कहां से देंगे, यहां से 1 2 3, 3 पे क्या प्रेजेंट है, 3 हेलो, ठीक है, साइक्लो हेक्स 1 ईन, so this is the name of the compound. Okay, this is double bond, 1 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, ईन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी नोमेनक्लेचर की तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके प्लीज उसको विजिट कीजिए। तो उसमें हमने बताया हुआ है कि आपको हाउ वी कैन राइट, फर्स्ट वी हैव टू राइट प्रेफिक्स, प्रेफिक्स क्या होता है, देन व्हाट इज वर्ड रूट, देन वी हैव एक्सप्लेन अबाउट द प्राइमरी सफिक्स, देन वी हैव सेकेंडरी सफिक्स। ओके, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं तो वर्ड रूट क्या होता है, जो आप करते हो मिथ, हिथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, ये सारे वर्ड रूट होते हैं हमारे पास, हेक्स, हेप। ओके, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स होता है हमारे पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से कौन सा प्रेजेंट है। सेकेंडरी सफिक्स होता है कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और प्रेफिक्स हमेशा सबसे आगे आता है। प्रेफिक्स क्या होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये सब्स्टिट्यूट में प्रेजेंट था, सो दिस इज प्रेफिक्स, 3 पोजीशन पे हेलो। ओके, सो वर्ड रूट क्या आ गया, साइक्लोहेक्स, and we have primary suffix 1 in, we don't have any secondary suffix present. Is it clear? So this is about the allylic. I repeat, allylic में क्या होता था हमारे पास, जो कार्बन जो हेलोजन के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होता था, क्योंकि हमें allylic में sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं तो इस कार्बन पे हमें सारे सिंगल बॉन्ड चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव साइक्लो में भी अगर आप देख सकते हो तो 3 पे हेलो, साइक्लो हेक्स 1 इन, सो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, allylic पोजीशंस। Okay, third we have benzylic. Okay, so what is benzylic? बेंजीन के ऊपर, तो ये बेंजाइलिक बन गया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बेंजाइल क्या होते हैं। देखो, अगर मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर प्लीज आप उन लेक्चर्स को विजिट कीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह से प्रेजेंट है हमारे पास कोई भी मतलब ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे जरूरी कि हेलोजन हो, कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, सो दिस पोजीशन इज नोन एज बेंजाइल, ZYL। एंड अगर हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे वैकेंट है कि कोई भी ग्रुप आके लग सकता है, सो दिस इज नोन एज बेंजल। अगर हमारे पास सारे में ही खाली है कि कोई भी ग्रुप लग जाए, सो दिस इज नोन एज बेंजो। ओके, सो यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप खाली था, ये वाली पोजीशन है, सो दिस इज नोन एज बेंजाइल क्लोराइड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये नोमेनक्लेचर के टॉपिक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे कोई भी, चलो Cl नहीं लगाते, कोई एक्स ग्रुप लगा लेते हैं। मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर मेरे पास प्रीवियस लेक्चर में ये कौन सी पोजीशन होती है, तो दिस इज नेफ्थलीन, ऑल्टरनेट्स पे वी हैव डबल बॉन्ड, तो ये क्या था, हमने नेफ्थलीन किया था। ठीक है, तो हम इसमें भी कैसे करेंगे, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, डबल बॉन्ड लगा दिया। ओके, तो बेंजाइलिक पोजीशन का। नेक्स्ट वी हैव ओके, तो ये कौन सा बन गया, डाई एल्काइल बेंजाइल हैलाइड। इज इट फाइन? तो ये हमारे पास होगी बेंजाइलिक। तो हम लोगों ने पहले किया था sp3, ये तीनों sp3 है। देखो कहीं पे भी डायरेक्टली हेलोजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, जहां पे हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं होता वो पोजीशन को हम sp3 कहते हैं। अभी हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज, ओके, जिसमें हमारे पास आएगा एराइलिक एंड विनाइलिक।
सो इसमें हमारे पास होता है विनाइल, विनाइलिक एंड एराइलिक, और यू कैन से विनाइल और एराइल हैलाइड्स, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो विनाइलिक में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है यहाँ पे जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C, तो हेलोजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो हेलोजन के साथ वाले कार्बन पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, सो दिस इज विनाइलिक, ओके। एराइल हैलाइड में वेरी इजी, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, सो दिस पोजीशन इज एराइल हैलाइड। क्लियर हो गया, अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच है तो दिस इज नोन एज एराइल। if the halogen is attached directly to the benzene ring or to the aromatic ring, though this is known as aryl halide. And if the halogen is attached to the carbon which is having double bonds, and then position is known as vinylic position. ओके, सो ये हमारे पास बेसिक था। थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने पहले तो क्लासिफाई किया था, वी क्लासिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे हमने किया था मोनो, डाई एंड ट्राई, देन वी हैव डन जेम एंड द विस्लर पोजीशन। उसके बाद हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ hybridization. First we have completed the sp3, then we have done sp2 hybridize. उसके बाद हम करेंगे nomenclature, then method of preparation, physical properties, chemical properties and the naming reaction. इस तरह से हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। ओके, अभी हम करने जा रहे हैं nomenclature of haloalkane and haloarine. ओके, ये हमारे पास ऐड करें, हम लोगों के पास कुछ फॉर्म्स होती है, अगर इस तरह से प्रेजेंट होता है तो दिस इज N, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है तो दिस इज नोन एज आइसो, अगर यहाँ पे भी कुछ प्रेजेंट होता है तो दिस पोजीशन इज नोन एज नियो। ओके, चलो अब हम इसके नाम लिखते हैं। सो दिस इज नोन एज, वन पोजीशन पे क्लोरीन है, सो क्लोरोमीथेन 1 2 3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 फ्लोरो मिथित प्रोपेन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज 1 2 3, 2 क्लोरो प्रोपेन, सो दिस इज 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 4 के लिए क्या हो गया, ब्यूटेन। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हमने प्रेफिक्स लिखा, फिर हमने वर्ड रूट लिखा, फिर हमने प्राइमरी सफिक्स लिखा। ओके, इन द सेम वे इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 2 डाइमिथाइल, 1 ब्रोमो, ओके, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, नियो, आइसो एंड एन स्ट्रक्चर आपको पता चल गई। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नॉमेनक्लेचर की वीडियोस में भी बताया था। उसके बाद आगे इसका नाम अभी हमने किया था, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। ओके, तो इसका नाम क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ओके, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इनको हमने प्रेफरेंस दे दी, ये भी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ओके, सो 3 ब्रोमो, 3 पोजीशन पे क्या है हमारे पास, ब्रोमो। ओके, 1 2 3, 3 मीन्स प्रॉप 2 ई, प्रॉप 1 ई। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव सेम 1 2, for 2 we have ethane, so 2 chloro 8 1 ene। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने कोशिश की है कि कुछ स्ट्रक्चर्स को इसमें इंकलकेट कर ले। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोरीन्स। उसके बाद हम करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज एंड द नेमिंग रिएक्शन, ओके, विद द मैकेनिज्म। उसमें हम सब व्हाट इज मार्कोनिकोव, व्हाट इज एंटी मार्कोनिकोव एंड द नेमिंग रिएक्शन विल डू द फिल्किंस्टन, स्वार्ट्ज एक्सेट्रा। सो ये सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लेक्चर। प्लीज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।